رات کی تاریکی ہر سو پھیل چکی ہے اور یہ تاریکی، یہ خاموشی مجھے اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنا حسین چہرہ بلکہ سارے فساد کی جڑ کو چھپا کر بس میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے کیونکہ میں زندگی میں اس طرح پہلی بار گھر سے اکیلی نکلی ہوں۔ میں نے اپنی گود میں یہ گٹکری رکھی ہوئی ہے، جی چاہتا ہے کہ اس گٹری کو پھینک دوں تاکہ مجھ سے میری شناخت چھن جائے، لیکن میں تو جانتی ہی نہیں ہوں کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم مجھ جیسی لڑکی کا کیا انجام ہونا ہے۔ میری تو یہی دعا ہے کہ میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ میرا نام کنزا ہے۔ میں بہت زیادہ حسین تھی، والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، بڑے ناز و نام سے پلی تھی۔ گو کہ میرا تعلق ایک متوازن گھرانے سے تھا، جہاں پر 2 وقت کی روٹی پوری کرنے کے لیے بھی دن رات محنت کرنا پڑتی ہے۔ ابو بہت محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنا پیٹ کاٹ کر میرے لیے ہر وہ چیز لے کر آتے تھے جس کی میں خواہش کیا کرتی تھی۔ میری نظر میں تو میرا باپ فرشتہ صفت انسان تھا، مگر نہ جانے کیوں میری ماں میرے باپ کو ہر وقت برا بھلا کیوں کہتی رہتی تھی۔ ابو کے نئے نقش بھی پیارے تھے، بولنے چالنے کا انداز بھی بہت اچھا تھا۔ ان میں صرف ایک خامی تھی اور وہ یہ تھی کہ ابو غریب تھے، وہ اپنی جان مار کر کام کرتے تھے، مگر تب بھی امی ان سے راضی نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ تو میرے سامنے ابو سے کہتی کہ میری قسمت اتنی بری تھی کیا جو تجھ جیسے کنگلے سے میری شادی ہو گئی۔ ابو نے امی کی باتوں کا کبھی کوئی جواب نہیں دیا تھا، البتہ میں ضرور پڑ جایا کرتی تھی۔ میں کہتی امی انسان اپنی قسمت کا کھاتا اور کماتا ہے، آپ میرے ابو کو اس قدر تنگ مت کیا کریں۔ میری امی مجھے گھور کر کہتی تو بھی بالکل اپنے باپ پر گئی ہے۔ ایک رات بہت تیز آندھی آئی تھی، میں اپنے کمرے میں لیٹی ڈر رہی تھی، عجیب سی وحشت ہو رہی تھی ہر چیز سے، ایسا لگتا تھا جیسے روحیں میرے آس پاس گھوم رہی ہیں۔ دل بہت گھبرا رہا تھا، مگر والدین کی آرام کا خیال کر کے ان کے کمرے میں نہ گئی۔ یوں ہی ڈرتے ڈرتے رات بیت گئی۔ میری صبح امی کی چیخیں سن کر ہوئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ہائے میں تو اجڑ گئی، میرے دل پر دھوکہ سا لگا تھا۔ میں بھاگ کر امی کے کمرے میں گئی تو میرے باپ کی سرد لاش پڑی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے امی کی جانب دیکھنے لگی۔ امی بولی کنزا مجھے نہیں معلوم یہ سب اور کب ہوا، میری طبیعت خراب تھی، میں تو دوا لے کر سو گئی تھی، مجھے اپنے ارد گرد کی کچھ ہوش نہیں تھی۔ صبح اٹھی تو دیکھا تیرا باپ چلا گیا ہے۔ میں اس قدر شاک کی کیفیت میں تھی کہ میری آنکھ سے آنسو بھی نہیں پڑتا تھا۔ میری امی نے چیخ چیخ کر سارا محلہ اکٹھا کر لیا تھا، ہر کوئی ہمیں دلاسے دے رہا تھا، مگر میری آنکھوں میں تو رات والا منظر ٹہر سا گیا تھا۔ شاید میرے ابو کی روح رات بھر میرے کمرے میں ہی رہی تھی۔ ابو کی میت اٹھائی گئی تب میرا سکتہ ٹوٹا تھا، میں ابو کی میت کے ساتھ لپیٹ گئی تھی۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ باپ کے جانے کے بعد میرے بخت الٹ گئے تھے، میں ماں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی تھی۔ اور پھر ایک دن امی میرے پاس آ کر بولی کنزا آج تیرا نکاح ہے، تیار ہو جانا۔ میں نہ سمجھی سے امی کی جانب دیکھتی رہی تھی۔ وہ بولی یہ عروسی لباس پہن لینا، تیرے سسرال کی جانب سے آیا ہے۔ میں نے ایک دم سے وہ شوپر امی سے چھین کر دور پھینک دیا اور بولی امی آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ابھی تو میرے باپ کی خبر کا مٹی کا بھی رنگ تبدیل نہیں ہوا، ابھی تو ان کا 40واں بھی نہیں ہوا، آپ کو ابھی سے میری شادی کی پڑ گئی ہے کیا؟ امی ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی بیٹی میں یہ سب ہرگز نہ کرتی، مگر تیرے باپ سے مرنے سے 2 دن قبل مجھے بتایا تھا کہ اس نے تمہارے لیے ایک رشتہ پسند کیا ہے۔ اب کل رات وہ مجھے خواب میں آیا تھا، اس کی روح بہت بے چین تھی، کہنے لگا میری بیٹی کی ابھی تک شادی کیوں نہ کی، بیٹی شادی کر لو نہیں تو تیرے باپ کی روح بے چین رہے گی۔ امی کی یہ باتیں سن کر مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا تھا، کیا سچ میں میری وجہ سے میرے باپ کی روح بے چین تھی؟ امی اٹھ کر چلی گئی تھی، مگر میں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ امی کی باتیں یاد کر کر کے مجھے بخار ہو گیا تھا۔ شام میں ٹماٹر کی طرح سرخ ہو چکی تھی، بخار سے میرا بدن ٹوٹ رہا تھا، تب بھی امی نے مجھے مہلت نہ دی۔ میرا دلہا آیا تھا مگر میں اسے دیکھ نہ پائی۔ میرا نکاح ہو گیا
और मुझे गाड़ी में बिठा दिया गया। गाड़ी में बुखार की वजह से मेरी आंख लग गई थी। फिर घर आ गया। मुझे नहीं मालूम किसने मेरा हाथ पकड़ा, कौन मुझे कमरे तक लेकर गया। मुझे स्टेज पर बिठा दिया गया, मगर जिस्म में इतना दर्द था कि मुझसे बैठा ना गया, इसलिए मैं लेट गई। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी कमरे में दाखिल हुआ। मैं समझी शायद ये मेरा ससुर है, इसलिए जल्दी से उठकर बैठ गई। वो बूढ़ा शख्स मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ किंजा, जो मुझे तुम जैसी लड़की मिली है। मैं इसकी बात सुनकर एकदम होश में लौट आई थी। फिर इसने अंगूठी मेरी जानिब बढ़ाई तो मैं चिल्ला उठी। मैं बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। इसको गुस्सा आ गया और बोला, क्यों, अपने पीछे कोई आशिक छोड़कर आई हो क्या? मैं शौक की कैफियत में थी। वो गुस्से से बोलता चला जा रहा था। कहने लगा, अगर कोई आशिक था तो अपनी माँ को बताती। इसने मुझसे जो 10 लाख रुपए लिए हैं वो तुम्हारे आशिक से लेकर तुझे इसके साथ भी आते थी। इस शख्स की बात सुनकर मैं ढह सी गई थी। मेरी आंखें बंद हो चुकी थी। मैं गहरी बेहोशी में चली गई थी। सुबह मेरी आंख खुली तो मैं कमरे में खुद को अकेला पाया था। मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया तो ये देखकर हैरान रह गई कि यह कमरा तो बहुत ज्यादा वसी था। मैंने खुद में हिम्मत पैदा की और उठकर बाहर निकल गई। बाहर जाकर देखा तो अलग ही दुनिया आबाद थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी महल में आ बसी हूँ। यहाँ वहाँ नौकर चाकर घूम फिर रहे थे। मेरे लिए नाश्ता भी मुलाजिमा ने ही बनाया था। मैं अम्मी के बारे में सोचने लगी थी। मेरी माँ ने हमेशा पैसे का लालच किया था। मेरे बाप की जिंदगी अजीरन बना रखी थी, फिर मुझे भी भेज दिया। अब्बू को ख्वाब में देखने वाली बात तो बस बहाना ही थी। खैर, मेरा सारा दिन अजीब बेचैनी से गुजर रहा था। कहते हैं ना कि अगर दिल राजी ना हो तो दुनिया की कोई चीज भी खुशी नहीं देती। खैर, जब रात हुई तो मेरा शौहर कमरे में आ गया। वो बड़े खुशगवार मूड में था। कहने लगा, माफ करना, काम की ज्यादती की वजह से घर वापस आने में देर हो गई। तुम सुनाओ, अब तबीयत कैसी है? मैं बोली, अभी भी नहीं ठीक। मैंने इससे झूठ बोला था ताकि वो मुझसे दूर दूर ही रहे। मेरी बात सुनकर इसने एक अजीब काम किया था। वो मेरे पैरों की मालिश करने लगा था। बोला, इससे तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। मुझे यह सब मुनासिब नहीं लगा, इसलिए इसे बार बार मना किया, मगर वो मेरी बात की कहाँ सुनता था। इसने मेरे पैरों की खूब मालिश की और फिर बोला, ये बकरी का दूध है, तुम्हारी नाक में डालना है। क्या बात है फैसल? वो कहने लगा, ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तुम बहुत कमजोर सी हो ना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ताल्लुक गरीब घराने से था। तुम्हें खुराक की कमी का भी सामना रहा होगा। मुझे शर्म आती है कि मैं तुम जैसी लड़की को लोगों में ये कहकर मुतारिफ कराऊं कि ये मेरी बीवी है। मैं इसकी बात सुनकर रोने लगी थी। मुझे मेरे बाप ने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अभी मैं इतना ही बोली थी कि गहरी नींद में खो चुकी थी। सुबह में दिन चढ़े तक सोती रही थी। ये महल नुमा घर मुझे खैर काने से लगने लगा था। मैं कमरे से बाहर आई तो मेरा शौहर सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था। इसने मुझे देखा तो अपनी जगह से उठकर मेरे पास आया और मेरा हाथ थामकर मुझे सोफे तक लाया और बोला, क्या बात है किंजा, तुम कुछ परेशान लग रही हो। मैं अपने शौहर को देखती रह गई थी। शादी की रात जब मैंने अपने शौहर को पहली बार देखा था तो मुझे इससे बेइंतहा नफरत महसूस हुई थी और आज इसके इस अमल से मुझे अपने दिल से इसके लिए नफरत निकलती हुई नजर आई थी। सच कहते हैं कि औरत इज्जत की भूखी होती है। मैं बोली, सैफ घर में घुटन महसूस होती है, दिल घबराता है। वो बोला, तो क्या हुआ, पास पड़ोस में जाओ, लोगों से मिलो, इनसे बातें करो, दिल बहल जाएगा। मुझे फैसल की यह बात भी अच्छी लगी थी कि इसने मुझे कैद करके नहीं रखा था। मैं घर से बाहर निकल गई थी। फैसल का घर पोश एरिया में था। मैं गेट कर खड़ी थी। तब मुझे तो बहुत ही मॉडर्न सी औरतें नजर आई। उन्होंने भी मुझे देख लिया था, इसीलिए मेरी जानिब पड़ आई थी। एक ने पूछा, क्या तुम फैसल साहिब की बीवी हो? मैंने इस बात में सर हिला दिया और इनसे इसरार किया कि मेरे घर चलें ताकि जान पहचान हो जाए। वो बोले, हम तो पीर साहब के पास जा रहे हैं, तुमने चलना है तो हमारे साथ आ जाओ। इन औरतों की बात सुनकर मैं बड़ी हैरान हुई थी। मैं बोली, क्या आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी पैरों फकीरों पर एतबार करते हैं? एक औरत बहुत प्यार से बोली, किंजा तुम हमारे साथ चलो, फिर खुद ही फैसला कर लेना। मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ, इसलिए सभी इनके साथ चल पड़े थे। इस पीर साहब का घर हमारे घर से 5 मिनट के फासले पर था।
हम तीनों वहाँ गए तो पीर बहुत खुश हुआ था। मैं इसकी तरफ देखकर बहुत हैरान हुई थी, क्योंकि मैंने कभी ख्याल में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी पीर होते हैं। वो बहुत ही मजहब किस्म का इंसान लग रहा था। इसने हमें बैठने को कहा था। हम बैठ गए। इससे पहले कि वो औरतें मेरा तारुफ करवाती, पीर साहब बोले, इस लड़के का नाम किंजा है। 3 हफ्ते कबल ही इसके वालिद का इंतकाल हुआ है। इसकी वालिदा ने इससे पूछे बिना ही इसकी शादी फैसल साहब से करवा दी है। ये फैसल साहब को पसंद नहीं करती थी, मगर अब इनके बारे में अच्छे ख्यालात रखने लगी है। बस इतना काफी है या और कुछ भी बताऊं? मैं तो पीर साहिब की बात सुनकर ही दंग रह गई थी। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कोई यूं मेरा चेहरा देखकर मेरे बारे में सब कुछ जान जाएगा। पीर साहिब ने मुझे दुआ दी। इन औरतों ने अपने मसाइल इनके सामने रखे। फिर मैं घर वापस आ गई। घर वापस आकर भी मेरा दिमाग पीर साहिब में ही अटका हुआ था। वो मुझे पहली नजर में ही बहुत अच्छे लगे थे। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि काश फैसल के बजाय मेरी शादी इस पीर साहिब से हो जाती। खैर, मैंने फिर इस ख्याल को झटक दिया था। रात हुई तो मेरे शौहर ने फिर से मेरे पैरों की मालिश की थी। इसके हाथों में इतना सुकून था कि मेरी आंखें नींद से बोझल होने लगी थी। इसके बाद इसने मुझे बकरी का दूध दिया और बोला, नाक पर लगा लो। मैंने अपने शौहर की बात मान ली। फिर थोड़ी ही देर बाद मैं नींद की वादियों में खो चुकी थी। सुबह जब मैं उठी तो मैंने बिस्तर को खाली पाया था। मेरा दिल घबराने लगा था। मैंने सोचा फैसल मेरे बारे में क्या सोचेंगी कि मेरी बीवी मुझसे जान छुड़ाने के लिए नींद का नाटक करती है। मुझे ये भी डर था कि ना जाने अब वो मेरे साथ क्या ऐसा सुलूक करेंगे। मगर जब मैं कमरे से बाहर आई तो वो मुझे देखकर जिसे बहुत खुश हुए थे, मुझसे प्यार से बात करने लगे थे। मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा थी और बोली, फैसल मुझे माफ कीजिएगा, मैं जल्दी सो गई थी। मेरा शौहर मुस्कुराकर बोला, नींद पर किसका इख्तियार है, तुम बिला वजह माजरत मत करो। मैं फैसल की बात सुनकर हल्की फुल्की सी हो गई थी। शाम हुई तो मेरा दिल पीर साहब के घर जाने को करने लगा था। मैं इनसे अपने लिए हिसाब करवाना चाहती थी कि आखिर मेरी जिंदगी कैसे गुजरने वाली है। यूं तो मैं पीरों फकीरों पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन यहाँ बात ही कुछ और थी। वो बहुत ही शरीफ किस्म के इंसान थे। आंखें झुकाकर बात करते थे। दूसरे की बात सुनकर इसकी परेशानी का हल निकाल दिया करते थे। गो के इनमें हर वो खूबी मौजूद थी जो किसी भी आला पाए के इंसान में होना चाहिए। आखिरकार मैं खुद को रोक ना पाई और पीर साहब के घर पहुंच गई थी। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे। उन्होंने एक नजर डालने के बाद से झुका लिया था। मैंने इनसे अपनी किस्मत का हाल पूछा तो मुस्कुराकर कहने लगे, तकदीर रब की तरफ से है। हाँ, अगर कोई मसला दरपेश है तो बताओ, इसका हल निकाल देते हैं। मैं बोली, पीर साहब मेरा दिल बहुत उदास रहता है, क्या करूं? वो बोले, अल्लाह से लगा लो। अल्लाह तुम्हें अनचाहे लोगों से बचाकर इन लोगों में ले आए जिनको तुम दिल से चाहती हो मगर मानने से डरती हो। मैं हैरान थी कि पीर साहब को बात मेरे दिल की कैसे जान लेते हैं। मैं बोली, पीर साहब कोई वजीफा? वो मुस्कुराकर बोले, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर दरूद पढ़ने से बेहतर और क्या हो सकता है। तुम उठते बैठते चलते फिरते दरूद शरीफ पढ़ते रहा करो। मैंने इनका शुक्रिया अदा किया और अपने घर वापस आ गई थी। मैंने पीर साहब की बात पर अमल किया और दरूद पाक का विर्द करने लगी थी। फैसल अब पहले से भी बढ़कर मेरा ख्याल रखने लगे थे, मगर मैंने महसूस किया था कि वो कुछ थके थके से कुछ परेशान से रहते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो मेरे पैरों की मालिश करने में भूलते थे और ना ही नाक में बकरी का दूध डालना भूलते थे। मैं इनको मना भी करती थी कि आप ऐसा मत किया करें, आप तो खुद कुछ परेशान से लगते हैं, मगर वो मेरी एक ना सुनते। मैं सारी रात सोई रहती मगर मेरे इर्द गिर्द का कुछ होश नहीं होता था। एक दिन फैसल हाफिज गए तो घर वापस नहीं आए, बल्कि इनकी मैयत आ गई थी। मुझे किसी ने बताया कि इन्हें हॉस्पिटल में दिल का दौरा पड़ा था, इसी सबब इंतकाल कर गए हैं। मुझ पर तो गम का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरा शौहर ही तो भरी दुनिया में मेरा सहारा था, अब वो भी मुझसे छीन गया था तो मैं कहाँ जाती। मैंने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। खैर, जाने वाले तो चले जाते हैं। फैसल के इंतकाल के 7वें दिन पीर साहब मेरे घर आए थे। वो मेरे शौहर की ताज़ियत करने आए थे। इनका यूं चलकर मेरे घर आना बड़े अजीज का बात थी। वो बोले, किंजा मैंने कहा था ना कि दरूद शरीफ की बरकत से अनचाहे लोग तुम्हारी जिंदगी से चले जाएंगे। लो, तुम्हारा शौहर चला गया,
अब तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें चाहने वाले लोग आएंगे, इनके लिए खुद को तैयार कर लो। मैं पीर साहब की बात समझ में पाई थी, बल्कि मुझे तो इनकी बात सरे से अच्छी नहीं लगी थी। खैर वो चले गए तो मैं अपने घर में इद्दत पूरी करने लगी थी। अब मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी। शायद मैं अब पीरों की मालिश की आदी हो चुकी थी, इसलिए मैंने अपनी काम वाली से कह दिया था कि तुम मेरे पैरों की मालिश कर दिया करो। वो मान गई, मगर इसकी मालिश से भी मुझे नींद नहीं आती थी। मैं समझ गई कि मेरे शौहर के पास खास किस्म का तेल था, जिसकी वजह से मुझे नींद आ जाया करती थी। मैंने इनके हाथ में अक्सर वो तेल देखा था, इसलिए मैं वो ढूंढने लगी थी, मगर ना जाने वो अपना खास तेल कहाँ रखते थे। घर का कोना कोना छान मारने के बाद भी मुझे वो तेल नहीं मिला था। अब मैं बेख्वाबी का शिकार रहा करती थी। यूं ही दिन गुजरते गए और मेरी इद्दत भी पूरी होती गई। एक दिन पीर साहब मेरे घर आए थे। वो कहने लगे, किंजा अभी तुम कम उम्र हो, सारी जिंदगी अपने शौहर की याद गले से लगाकर नहीं रह सकती। फिर तुम जानती हो कि आजकल के हालात कैसे हैं। एक बेवा औरत अपने घर की चार दीवारी में भी महफूज नहीं है। तुम्हें कभी ना कभी शादी लाजमी करना पड़ेगी, क्योंकि तन्हा औरत पर तो लोग चील कौवों की तरह टूट पड़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। मैं पीर साहब की बात सुनकर दंग रह गई थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी ख्वाहिश इस तरह पूरी हो सकेगी। मुझे बीच में पीर साहब मिल जाएंगे। मैं इनकी ऑफर सुनकर खुश तो बहुत हुई थी, मगर बोले, पीर साहब मुझ बेवा से शादी क्यों करना चाहते हैं? वो मुस्कुराकर बोले, ताकि तुम्हें जिंदगी की तमाम खुशियां दे सकूं। मैं उठकर अपने घर आ गई थी। मैं बेहतर ज्यादा खुश थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हाँ कैसे कह दूं। बहुत सोच विचार के बाद मैंने अपनी मुलाजिमा के हाथ पे पैगाम भिजवा दिया था कि मैं इस शादी के लिए रजामंद हूँ। पीर साहब ने भी पैगाम भिजवा दिया था कि मैं कल निकाह के लिए मौलवी साहब को ले आऊंगा। मैं बेइंतहा खुश हुई थी। मैं बाजार से जाकर कुछ जरूरत की चीजें और एक नया उर्दूसी लिबास खरीद लिया था। मैं जब घर वापस आई तो मेरी मुलाजिमा मुझे बहुत खुश दिखाई दी थी। वो कहने लगी, बाजी आपके शौहर का तेल मिल गया है, जिससे वो आपके पाँव की मालिश करते थे। मैं ये जानकर बहुत खुश हुई थी। मैं इससे बोले, सारे कामकाज छोड़ दो और मेरे पैरों की मालिश कर दो। इसने जैसे ही तेल लगाया मुझ पर कंधों की छाने लगी थी। मैं शाम 4 बजे की सोई अगले दिन 11 बजे उठी थी। मैं हैरान थी कि मुझे इतनी नींद कैसे आ गई थी। फिर ख्याल आया कि आज तो मेरा निकाह था। मैं खुद को कोसने लगी कि भला मुझे क्या जरूरत पड़ी थी मालिश करवाने की। थोड़ी देर बाद ही मेरे पास वो मुलाजिमा आ गई। कहने लगी, बाजी आप जानती हैं कि इस तेल में बेहोशी की दवा मिली हुई थी, जब ही तो आपको इतनी गहरी नींद आई। मैं भी तेल लगाते लगाते सो गई थी। मैं एकदम चौंक गई थी कि आखिर मेरा शौहर मुझे क्यों बेहोश करना चाहता था। मैं बोली, ये तेल तुम्हें जहाँ से मिला है मुझे वहाँ ले जाओ। वो मुझे फैसल की स्टडी रूम में ले गए थे। वहाँ मेरे देखने के लिए बहुत सी चीजें मौजूद थी। मैं बोली, तुम जाओ मैं आती हूँ। वहाँ एक हिसाब किताब वाला रजिस्टर पड़ा था। मैंने वो खोल कर देखना शुरू किया। फैसल ने इस रजिस्टर में सब कुछ दर्ज किया हुआ था। अपने बिजनेस की सारी डिटेल लिखी हुई थी। आगे ये कागज पर लिखा हुआ था कि मेरे पास इतनी दौलत तो मौजूद है, मगर कोई वारिस नहीं है, इसलिए मैंने ये कम उम्र लड़के से शादी की ताकि मेरा वारिस पैदा हो जाए। मैं शादी की तकरीब में अपने साथ पीर साहब को भी लेकर गया था। उन्होंने मुझे घर आकर बताया कि किंजा से कहीं वारिस नहीं मिलेगा। मैं बहुत घबरा गया था, लेकिन उन्होंने फिर दम किया हुआ तेल और बकरी का दूध दिया। उन्होंने कहा कि हर दिन तुमने ये अमल करना है, फिर तुम्हारी बीवी हमल के लिए तैयार हो जाएगी। पीर साहब ने मुझे भी एक बॉटल रुख संदूल दिया है। मैंने अपनी बीवी के तेल में नींद की स्प्रे शामिल कर दी है। वो इसे सूंघते ही सो जाती है। यूं मैं इसके सवाल और जवाब से बच जाता हूँ। अरक संदूल पीने से मुझे भी नींद आ जाती है। मैं ये सब पढ़कर बहुत हैरान थी। मेरा दिल घबराने लगा था। इधर ही अरक संदूल की बोतल भी पड़ी थी। मैंने सोचा कि इसको लेबोरेटरी में चेक करवाती हूँ। नताइज जान निकालने वाले थे। अरक संदूल में स्लो पॉइजन शामिल गई, जिससे इंसान धीरे धीरे अंदर से खत्म होकर मर जाता है। मैं थर थर कांपने लगी थी। ये सब पीर साहब ने क्यों किया? मैं राज जानना चाहती थी, इसलिए मैं इनके घर की जानिब चल पड़ी थी। मैंने जैसे ही इनके घर कदम रखा, इनकी आवाज मेरे कानों में पड़ी थी। वो ना जाने किससे बात कर रहे थे। कहने लगे, आज मैं अपनी मोहब्बत को हासिल करने जा रहा हूँ। क्या फैसल बूढ़ा
हर हसीन औरत का हकदार है। नहीं ना, वो मुझे अपने साथ शादी पर लेकर गया था। मुझे पहली नजर में ही इसकी बीवी से मोहब्बत हो गई थी। इसलिए मैंने फैसल से कह दिया कि 40 रोज से पहले आप अपनी बीवी के पास मत जाना, और तेल और बकरी का दूध थमा दिया खुद इसको रास्ते से हटाने के लिए। मैंने इसको शरबत में जहर मिलाकर दे दिया। किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ। क्यों ना इन लोगों की आंखों में मैं धूल झोंक चुका हूँ। ये नहीं जानते कि मैं कितना बड़ा मुजरिम हूँ। मैं तो पुलिस से बचने की खातिर यहाँ पर भेस बदल कर बैठा हूँ। खैर, आज किंजा मेरी हो जाए। मैं इसकी बातें सुनकर खौफजदा हो चुकी थी। मैं उल्टे कदमों पे ही घर वापस आ गई थी। मैंने गार्ड से कह दिया था कि अगर कोई घर में दाखिल होने की कोशिश करे तो मत आने देना। फिर मैंने देखा कि पीर आया, लेकिन गार्ड ने इसे दाखिल नहीं होने दिया था। जैसे ही रात हुई, मैं घर के पिछले दरवाजे से निकल गई थी। मैं बस स्टेशन तक बड़ी मुश्किल से पहुंची थी। रात की तारीकी हद से फैल चुकी है, और ये तारीकी, ये खामोशी मुझे अपने अंदर उतरती हुई महसूस हो रही थी। मैं अपना हसीन चेहरा बल्कि सारे फसाद की जड़ को छुपाकर बस में बैठी हुई हूँ। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि मैं जिंदगी में इस तरह पहली बार घर से अकेली निकली हूँ। मैंने अपनी गोद में ये गटकरी रखी हुई है। जी चाहता है कि इस गटकरी को फेंक दूं, ताकि मुझसे मेरी शनाख्त छिन जाए। लेकिन मैं तो जानती ही नहीं हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। मेरे पास तो कोई ठिकाना ही नहीं है। मुझे नहीं मालूम मुझ जैसी लड़की का क्या अंजाम होना था। मेरी तो यही दुआ है कि मेरे साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। मुझे ये भी मालूम पड़ चुका था कि मेरे शौहर ने अपनी सारी जायदाद मुख्तलिफ यतीम खानों में तकसीम कर दी थी। इसने मेरे लिए फूटे कौड़ी भी नहीं छोड़ी थी। बहुत सोच विचार के बाद मेरे ज़हन में दारुल अमान का ख्याल आया था। मैं वहां जाकर आबाद हो गई थी। माँ के पास वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि मुझे इस पर यकीन नहीं रहा था वो मुझे फिर किसी शख्स के हाथों फ्लोट कर सकती थी। दारुल अमान आकर मैंने पीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था। पुलिस इसे पकड़कर ले गई थी। अब मैंने अपने लिए जीना सीखना है। मैंने अपनी अधूरी तालीम फिर से शुरू की थी। साथ साथ कॉल सेंटर पर जॉब भी शुरू कर दी। मुझे यकीन है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं मुकम्मल तौर पर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।